Good morning, class. So, today we'll be completing this chapter, chemical coordination and integration. So, this is all about the endocrine system, and after completing this chapter, we'll also continue with the neural coordination. So, both these chapters are linked together, and both the nervous system and endocrine are linked together for the coordination of our body, and both of them release some chemicals so that our functions of the body they can regulate at a normal pace. So the few parts of the endocrine chapters are left, so we'll be talking about them. First one is the hormones of the heart, kidney and gastrointestinal tract. So in the last class and the last slide that we discussed were the gonads. So gonads are also hormones. In males they are the testes, and in females they are the ova. And there were many hormones that we talked about, but now they are specifically hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract, and therefore they are very important. Now the hormones, they are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. So कुछ ऐसे hormones भी होते हैं जो ऐसे टिश्यूज से सिक्रीट हो जाते हैं जो खुद एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं है. तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस इज़ द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट. जो हमारे वॉल में एट्रियम होता है और उसकी जो वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द एट्रियल वॉल, एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, बट स्टिल इट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड द एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर. सो अबाउट दिस आई ऑल्सो talked about in the previous class and I asked some question about it. So the main function of this is अगर हमारी बॉडी में कोई ब्लड प्रेशर को सबसे ज़्यादा रेगुलेट करता है तो ये यही हार्मोन है, बिकॉज हार्ट रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. दैट्स वाई जो एट्रियल वॉल होती है हमारे हार्ट की वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है कॉल्ड एज द एट्रियल नेटियूरेटिक हार्मोन, द ANF, एंड दिस डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड. तो जो हम ड्रग्स लेते हैं द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, तो वो यहीं पे एक्ट करती है ऑन द एट्रियल वॉल. तो वो देन इट डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इफ द ब्लड प्रेशर इन एन इंडिविजुअल इज इंक्रीज टू अ रिस्की लेवल. ANF is secreted which causes dilation of the blood vessels and this reduces the blood pressure. As we all know कि जितना ज़्यादा हमारे वेसल्स जो हैं ब्लड वेसल्स उनका डायमीटर कम होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड, और जब हमारा डायलेट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स तो ब्लड ईजिली फ्लो होगा तो उसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं होगी. तो दिस इज़ हाउ द फंक्शनिंग ऑफ एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर इज़ डन. वो डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को एंड देन ब्लड ईजिली फ्लोज फ्रॉम देयर, thus it reduces the pressure of the blood. Then the juxtaglomerular cells of the kidneys, it is also a part which is not endocrine but still it is producing a peptide hormone that we called as erythropoietin. So the term erythropoietin, it is related to the erythrocytes which are the RBCs, and poietin, so the word poiesis means to form something. That's why they are producing a hormone called as erythropoietin, and from the name itself it is very clear कि ये formation of RBC करते हैं. They are doing the erythropoiesis process. Endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract. कुछ ऐसे होते हैं एंडोक्राइन सेल्स जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, एंड they are also secreting some very important peptide hormones. They are namely the gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. ये सब जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के हार्मोन है. These are related to the stomach and mainly in the digestive process. गैस्ट्रिन का क्या काम होता है? इट एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड व्हेन इट एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द HCl एंड पेप्सिनोजन. जब तक HCl सिक्रीट नहीं होगा और वो प्रेजेंट नहीं होगा हमारे स्टमक में तब तक जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज HCl एक्ट्स अपॉन पेप्सिनोजन एंड देन इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू एन एक्टिव फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज पेप्सिन, और फिर पेप्सिन डाइजेशन स्टार्ट करता है पेप्टाइड्स का, द प्रोटीन्स का. सो इसीलिए सबसे पहले जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलेट करने के बाद HCl सिक्रीट होता है और पेप्सिनोजन. अब सेक्रेटिन का क्या काम है? इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज के दो पार्ट थे, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट. तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन जो पार्ट था वो मेनली अल्फा बीटा एंड gamma cell secrete कर रहा था, and that were related to the glucagon and the insulin hormones.
बट यहाँ पे जो सिक्रीटिन है वो एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है पेनक्रियाज के, और वहाँ से क्या स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. द ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस जो होती है मेनली विच इज रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिफरेंट आयंस, ये सिक्रीटिन स्टिमुलेट करता है बाय acting upon the exocrine part of the pancreas. Then cholecystokinin, the CCK, it also acts upon both the pancreas and the gallbladder, and ये भी stimulate करता है secretion of the pancreatic enzymes and the bile juice, and as it is secreting or influencing the pancreas to secrete bile juice, it is directly or indirectly functioning in the digestion of the fats or the emulsification of fats. Now GIP it is also inhibiting the gastric secretion and motility. तो GIP is working antagonistically because ये किसी चीज़ को inhibit कर रहा है जो कि gastric gland, it is promoting that, so it is antagonistic. Then several other non-endocrine tissues they are there which secrete hormones. अब non-endocrine tissues एक example है the growth factors. These factors are essential for the normal growth of tissues and their repair and functioning, and they are not endocrine, still they are secreting some hormones. Now the mechanism of the hormone action. Now we'll talk about the mechanism, how these different hormones जो हैं हमारी body पे act करते हैं और अपना influence देते हैं for the various functions. Hormones produce their effects by targeting tissues and binding to specific proteins called the hormone receptors. तो receptors क्या होते हैं? Receptor in the English meaning it is something that is receiving anything. So receptors are those जो कोई भी effect को अपने ऊपर लेते हैं. So hormone receptors present होते हैं टारगेट टिश्यूज़ पे. हर टिश्यूज़ पे एक एक हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. एक स्पेसिफिक साइट होती है टिश्यू पे जो कि एक्ट करती है एज अ हार्मोन रिसेप्टर, और वही हार्मोन रिसेप्टर पे ही ये हार्मोन अपना जो इफ़ेक्ट है वो दे पाता है. एंड दीज आर लोकेटेड ऑन द टारगेट टिश्यूज़ ओनली. जो हमें जिस टिश्यूज़ को एट अ स्पेसिफिक टाइम टारगेट करना है तो ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स. स्पेसिफिक टिश्यूज़ मीन्स जो भी हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं. अगर थायराइड ग्लैंड होगा तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा अराउंड द नेक रीजन, क्योंकि वहीं पे उसका फंक्शन है. Now hormone receptors, they are present on the cell membrane of the target cells and they are also called as the membrane bound receptors. तो दो तरह के receptors होते हैं mainly, the membrane bound and the intracellular receptors. membrane bound क्या होते हैं? जो कि plasma membrane, we all know कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सबके अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सो कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड होते हैं, एंड इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कुछ स्पेसेस होती हैं, उस स्पेसेस के बीच में ये रिसेप्टर्स एम्बेडेड होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, मीन्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो फ्लूइड फिल्ड होता है सेल्स के अंदर, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं. तो जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं. And there are some receptors, they are called as the nuclear receptors. They are less in number but still they are there and they are present in the nucleus. Then binding of a hormone to its receptor leads to the formation of a hormone receptor complex. अब जो हार्मोन रिसेप्टर टिश्यू पे था वहाँ पे हार्मोन आके अपना इफेक्ट देगा. अब ये दोनों कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विच विल बी कॉल्ड एज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. एंड ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, हैंस रिसेप्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक. तो जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो जिस टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं उनमें एक ऐसी साइट्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर हार्मोन रिकग्नाइज कर पाता है. ये अगर कोई और हार्मोन यहीं पे एक्ट करने की कोशिश करेगा देन इट विल नॉट बी एबल टू गिव इट्स फंक्शन. दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. जो हार्मोन और रिसेप्टर का बॉन्डिंग होती है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक. लाइक इन द केस ऑफ एंजाइम्स भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज़ होता है एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल द रिएक्शन. इन द सेम वे एक हार्मोन एक पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर को ही इन्फ्लुएंस कर पाता है एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी स्पेसिफिक. देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इट लीड्स टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू. अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो हमारे जो टारगेट टिश्यू है जहाँ पे ये बन रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. These are called as the biochemical changes. And then the target tissue metabolism and वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है बढ़ जाती है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं होते हैं वो अब हार्मोन उनका रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है.
Now on the basis of the chemical nature, hormones can be divided into main these are the groups. जो पेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स बेसिकली होते हैं जो कि पूरे प्रोटीन्स के बने होते हैं. तो एग्जांपल है प्रोटीन हार्मोन्स का इंसुलिन, ग्लूकागॉन, द पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने भी होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब दे आर ऑफ द पेप्टाइड नेचर, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो फैट्स के बने होते हैं. एग्जांपल कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन. जो मोस्टली सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टेरॉइड्स के होते हैं. देन आयोडो थ्रियोनिन्स, दीज आर द थायराइड हार्मोन्स. Iodo means the word iodo is used when the iodine is present. So iodothreonines are those hormones which are constituting in the thyroid hormones and amino acid derivatives. This is the example for this in epinephrine, जो कि amino acid के combination से बने होते हैं. Complete protein नहीं होता है, but these are still derivatives of the amino acids. Then the hormones which interact with the membrane bound receptors normally do not enter the target cell. तो जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, कौन से रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो उनका फंक्शन वहीं तक रहता है. अब वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उन्हें मेम्ब्रेन पे ही मिल गया, तो अब उनका अंदर आने का कोई पॉइंट नहीं है. दैट्स वाई दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, बट दे स्टिल जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो ये मेम्ब्रेन पे ही एक्ट करके कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट कर देते हैं. कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स? द साइक्लिक AMP, देन IP3, कैल्शियम एक्सेट्रा. तो बेसिकली 3 टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे दिए हो गए हैं, बट 5 टाइप्स के होते हैं. दैट विल बी स्टडीड इन द हायर क्लासेस. तो साइक्लिक AMP, IP3 एंड कैल्शियम आयंस, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स. और ये जब प्रोड्यूस होते हैं व्हेन एवर हार्मोन टारगेट सेल के कॉन्टैक्ट में आता है. देन अब ये जब एक बार प्रोड्यूस हो जाते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये अब अगेन अपना फंक्शन करते हैं. दे रेगुलेट द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. तो सब इंटरकनेक्टेड है. सबसे पहले हार्मोन आया हार्मोन रिसेप्टर पे, अब बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? सेल को स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस सम सेकेंडरी मैसेंजर्स. दे कैन बी एनी सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP, IP3 और द कैल्शियम आयंस. देन अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं ये फिर रेगुलेट करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को. देन हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. अब जो हार्मोन्स हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो ये कौन से ज़्यादातर हार्मोन्स कौन से ऐसे होते हैं जो ये करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आयोडोथ्रियोनिन्स होते हैं. तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं एंड ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम. तो जीन एक्सप्रेशन, जो भी न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम, वो कौन से हार्मोन करते हैं? जो जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है, बिकॉज न्यूक्लियस भी इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है इनसाइड द सेल. इसलिए ऐसे हार्मोन्स जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस के लेवल पे, जीन के लेवल पे जो है वो अपने फंक्शंस देते हैं, और जिनका मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं. नाउ दिस इज़ द प्रोटीन हार्मोन एक्शन. द प्रोटीन हार्मोन एक्शन मीन्स जो भी हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं. सो दिस इज़ हाउ दे गिव दैट. अब इनका रिसेप्टर हमें यहीं पर मिल गया ऑन द मेम्ब्रेन. ये हमारी मेम्ब्रेन है मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर. हार्मोन आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया. दिस इज़ द रिसेप्टर, यू कैन सी दिस इज़ शोन, ये इट इज़ रिसीविंग द हार्मोन. ये कोई भी ओवेरियन, या इन्होंने एक ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन लिए, दैट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवरी. अब यहाँ पे पहला रिस्पॉन्स आया जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ये रिस्पॉन्स आया. रिस्पॉन्स क्या था? जनरेशन ऑफ एनी सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP और द कैल्शियम आयंस. अब ये दोनों ने कोई भी इनमें से कोई भी जो जनरेट हुआ है सेकेंडरी मैसेंजर वो अपना रिस्पॉन्स देगा और वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट कर देगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ओवरी. दैट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रमोट होगा और ओवेरियन ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ होता है? इनका इंटरसेलुलर होता है, इनका जो रिसेप्टर होता है, तो दैट्स वाई इनको अब अंदर जाना पड़ेगा. अब ये बन गया, ये हार्मोन इंटरसेलुलर प्रेजेंट था, इसको क्रॉस करना पड़ा बैरियर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और यहाँ पे ये बन गया था रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट हैपेंस? ये यूट्राइन सेल वॉल मेम्ब्रेन है. फिर क्या हुआ? जो न्यूक्लियस के अंदर गया तो ये जीन एक्सप्रेशन देगा एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो गए जो रेगुलेट करेंगे टिश्यू ग्रोथ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द टिश्यू. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द
जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे ही, जिनके रिसेप्टर्स और जिनके इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं. So this is the end of the chapter of chemical coordination and integration. So now the chapter which is also linked with it, it is the neural coordination and न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है हमारी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़. तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है वो देता है, एंड इसका जो एक्शन होता है वो कंपैरेटिवली जल्दी होता है अगर हम इसे एंडोक्राइन से कंपेयर करें, बट जो इसका इफेक्ट होता है वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है जितना कि एंडोक्राइन का जो स्टिमुलेशन होता है वो होता है. सो बेसिक डिफरेंस इनमें यही है, जो एक्शन है वो जल्दी आएगा नर्वस सिस्टम में, बट जो इसका इफेक्ट है वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. नाउ hemostasis. What is hemostasis? Hemostasis has to be maintained. So it is the our body activity, जो हमारी कंप्लीट बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उनको एक नॉर्मल पेस पे चलना होता है, और हमारी बॉडी किसी भी इम्बैलेंस प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में. दैट्स वाई एक हीमोस्टैसिस हमारी बॉडी में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए. तो जो न्यूरल कंट्रोल है वो हीमोस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. देन कोऑर्डिनेशन. The coordination is process through which two or more organs they interact and complement the functions of one another. कोई भी दो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स ये आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें कि वो अपना फंक्शन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ. दिस इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. दो चीज़ों का साथ में मिलकर काम करना और एक दूसरे की हेल्प करना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. Now there are two types of coordination: neural control and coordination and the chemical control and coordination. So in this chapter we will be studying the neural system of human, the mechanism of neural coordination, the nerve impulse, synapse and impulse conduction, as well as the physiology of a reflex action. The neural systems. अब इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है we'll be seeing that. और ये different organisms में तुम देख सकते हो. The human beings are being shown here, then earthworm, then the platyhelminthes, which is a flatworm. So brain and spinal cord are the main central nervous organ of the nervous system in the case of humans. फिर अगर हम फ्लैटवर्म में बात करें तो ब्रेन, नर्व ट्रंक, ट्रांसफर नर्व, ये सब जो हैं वो मिलकर बनाते हैं न्यूरल सिस्टम्स. अर्थवर्म में सेगमेंटल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो वील बी टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमंस. सो द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल. तो ये दो टाइप्स का होता है. एक जो सेंट्रल होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो पेरिफेरल होता है वो सब नर्व्स को इंक्लूड करता है. तो इंक्लूड ऑल द नर्व्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम अगेन डिवाइड होता है दो में, सिंपैथेटिक न्यूरल एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूरल एंड पेरिफेरल न्यूरल. सेंट्रल न्यूरल इंक्लूड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल डिफरेंट नर्व्स को करता है. और डिफरेंट नर्व्स में दो टाइप के सिस्टम आ जाते हैं, सोमैटिक न्यूरल एंड द ऑटोनोमिक. फिर ऑटोनोमिक अगेन डिवाइड होता है सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक. तो दिस इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये कब होता है? फाइट और टेक फ्लाइट और रन अवे. जब भी हम ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है हमारी बॉडी में जिसमें जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो रिलीज़ हो रहा है, मतलब वी आर एक्सपीरियंसिंग सम, मतलब जब हमारी बॉडी एक्साइटेड स्टेट में होती है तब जो सिस्टम वर्क करता है दैट इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है या डाइजेशन चल रहा होता है तो वो जो सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो हम इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल, बट ये है दिस इज़ शोन कि हाउ द सिंपैथेटिक एंड नर्वस जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सेम ऑर्गन पे डिफरेंट फंक्शंस देने की एबिलिटी रखता है. तो इन द केस ऑफ इफ़ यू टेक वन एग्जांपल ओनली इन हेयर, तो क्या सबसे पहले चीज़ है, अगर हम किसी एक्साइटेड स्टेट में हैं दैट इज़ अ फाइट और टेक अ फ्लाइट और रन अवे, ऐसी कंडीशन में है तो हमारी जो आई प्यूपिल होती है ऑफ द आई वो डायलेट हो जाती है. एंड द सेम वे जब हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं और हमारी सिंपली डाइजेशन चल रहा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी कोई फंक्शन नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हमारी बॉडी जो आई प्यूपिल है दैट गेट्स अ लिटिल कॉन्ट्रैक्टेड. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि सिंपैथेटिक एक सेम ऑर्गन पे दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कैसे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देने की एबिलिटी रखते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स.
So what are the different types of nerve fibers? The afferent, that is helping in the transmission of impulses from the tissues to the central nervous system, और efferent जो central nervous system से concerned peripheral tissues या organs पे कोई भी impulse लाती है. तो afferent का काम है, जैसे अगर हम किसी hot चीज़ को टच करते हैं तो हमारी जो टिश्यू है, हमारे जो स्किन टिश्यूज़ हैं, वो सबसे जल्दी हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस देते हैं कि रिमूव द हैंड फ्रॉम दैट थिंग विच इज़ वेरी हॉट. तो ये एफरेंट काम कर रही है, एफरेंट नर्व फाइबर्स. एंड एफरेंट क्या करती है, वो वापस सिग्नल लाती है ब्रेन से टू द टिश्यू जो भी अफेक्ट हुआ है. देन सेंसरी एंड मोटर, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड यूनी, बाई एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. अब माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है इन द न्यूरॉन, तो वो अगर एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है तो अगेन नर्व फाइबर्स दो में डिवाइड हो जाती हैं. और द बेसिक थिंग इज, जो भी माइलिन कंटेन होता है या माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उनमें जो नर्व कंडक्शन है वो ज़्यादा बेटर होता है. इट इज़ लिटिल स्लोअर बट इट इज़ स्टिल बेटर, क्योंकि इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है आसपास. और क्योंकि माइलिन जो है वो बेसिकली एक शीथ है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे किसी भी लॉस को इन फॉर्म ऑफ हीट और एनीथिंग. बट जो अनमाइलिनेटेड है उनमें जो रिस्पॉन्स देने की पावर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है. नाउ जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, वो कैसे होते हैं. और इन द पिक्चर यू कैन सी बाइपोलर न्यूरॉन्स. तो neurons arising from two poles. So यहाँ पे you can see they are 2 in number, arising from 2 poles, that's why they are called as bipolar. Then comes bipolar neurons की 2 processes होती हैं extending from the cell body, एक axon से और एक dendrite से. क्योंकि यहाँ पे दो डेवलप हो रहे हैं, that is bipolar. द एग्जाम्पल आर रेटिनल सेल्स जो होती हैं हमारी आइज़ में, रेटिना वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, रेटिनल सेल्स, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम सेल्स, ये सब जो है उनमें बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. यूनिपोलर न्यूरो सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब एक फीटस डेवलप होने वाला होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है, तब जो यूनिपोलर सेल्स जो होते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा जो रिस्पॉन्सेस देने नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे यूनिपोलर सेल्स होते हैं. देन मल्टीपोलर, जहाँ पे एक एक्सॉन होता है और दो डेंड्राइट्स होती हैं. तो एग्जाम्पल है इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, हाउ इट लुक्स लाइक. And there are about 100 million neurons in the human brain. So this is the different parts of a neuron. This is the smallest structure and functional unit of nervous system. तो ये axon है, then यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट्स हैं, डिफरेंट डेंड्राइट्स. ये नोड्स ऑफ रेनवियर है जहाँ पे माइलिन शीथ ब्रेक होती है. दीज आर कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रेनवियर. दिस इज़ द माइलिन शीथ. और अगर ये एब्सेंट होती है तो दैट nerve fiber is called as unmyelinated fiber. and ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल हैं जो कि रिस्पॉन्स को आगे ले जाते हैं towards the tissues. Now nerve transmission. The nerve transmission we'll be talking in the next class. For now this much is enough. So this was the introduction, how we'll be continuing with the nervous system.